Everyone, in this class I will cover the remaining principles given by Henry Fayol. So let's start. Our next principle is scalar chain. What is scalar chain? The scalar chain is the formal lines of authority from highest to lowest ranks. It states superior subordinate relationship and authority of superior in relation to subordinate at various levels. According to this principle, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should followed by the managers and the subordinate. According to the Fayol, this chain should not be violated in normal course of communication. So what is the advantage of scalar chain? Scalar chain advantage is to ensure the unity of command and effective communication in organization. So let's understand through an example. Suppose if D wants to communicate some report to A, तो पहले वो क्या करेगा? D C को कन्वे करेगा रिपोर्ट, फिर C B को कन्वे करेगा, फिर B A को कन्वे करेगा. D डायरेक्टली A से कम्युनिकेट नहीं करेगा. या फिर अगर हम बात करें A को D से कम्युनिकेट करना है तो वो पहले B को मैसेज कन्वे करेगा, फिर B C को करेगा और C D को करेगा. So this is called chain of authority or chain of command which is being followed. अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इस प्रिंसिपल में प्रॉब्लम आ रही थी जस्ट डिले इन कम्युनिकेशन. तो जो कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी इट कैन बी सॉल्व बाय gang plan. So Fayol permitted a shortcut chain that is known gang plan. So what is gang plan? Gang plan allows direct communication between the two employees of the same level. तो गैंग प्लान क्या कहता है कि अगर E J से वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस केस में वो डायरेक्टली परमिशन है. बट परमिशन कब है? जब वो D से परमिशन लेगा दूसरे लेवल के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो ई वाला जो पर्सन है वो जे से कम्युनिकेट कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड गैंग प्लान. तो एडवांटेज क्या हुआ गैंग प्लान का कि यहाँ पे शॉर्टेज कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया. अदरवाइज उसे क्या करना पड़ता? अदरवाइज उसे पहले ई को अगर जे से कम्युनिकेट करना है तो ई पहले डी को कम्युनिकेट करता, फिर सी को करता, फिर बी को करता, फिर ए को करता, फिर जी को करता, फिर एच को करता, फिर आई को करता, फिर मैसेज किसके पास पहुंचता? जे के पास. So to resolve this problem, gang plan has been introduced by Fayol. तो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि वो जो डिस्टेंस है, जो प्रॉब्लम थी डिले इन डिसीजन मेकिंग या डिले इन कम्युनिकेशन, वो सॉल्व हो गई बाय द गैंग प्लान. तो बेसिकली व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्केलर चेन? इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी between the superior and subordinate. It also help in developing the better relation. Also ensure the unity of command because there is no confusion or dual order. क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई मैसेज डी के पास है तो वो उसने किससे रिसीव किया? डेफिनेटली सी से. तो दिस इज अबाउट स्केलर चेन. Next principle, principle of order. According to this principle, there should be a proper place for everything and everyone. According to Fayol, there is a two type of order: material order and social order. Material order means there must be a certain place for everything and everything must be at a proper place. And social order means there must be appointed place for every employee and every employee must be in his or her appointed place. So what we can say? We can say that the right man in the right place. So according to this principle, there is a particular place for everything available in the organization. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि जितनी भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम बात करते हैं मैन, मटेरियल, किसी भी चीज की बात करें तो हर पर्टिकुलर रिसोर्स का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए. उससे एडवांटेज क्या है? लेट अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. सपोज करो वर्कर काम कर रहा है. जब वर्कर मशीन पे काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसे कभी ना कभी टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. तो किसी भी अगर चीज की उसको जरूरत होती है, अगर उसे ये पता है कि वो चीज उसे कहाँ पे अवेलेबल होगी तो डायरेक्टली वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके उसको मिल जाएगी. अदरवाइज उसे नहीं पता है तो क्या होगा? वो अननेसेसरी क्या करेगा? उसे ट्रेस करने में अपना
टाइम कंज्यूम करेगा। तो जो जितना भी टाइम उसका ट्रेस करने में कंज्यूम हुआ वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, यानी कि उस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा, उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अननेसेसरी उस चीज को सर्च कर रहा है। टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, टेलर इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ order because it helps in efficient use of resources, because no time is wasted in tracing the resources, and is also help in smooth and systematic working of the organization. So this is about principle of order. Next, principle of equity. Equity means equal treatment for all. So according to this principle, there should not be any discrimination amongst the employee on the basis of religion, language, caste, sex, belief or nationality. Or you can say everyone is equal in the eyes of मैनेजमेंट। तो फ्योल ने यहाँ पे फोकस किस पे किया है, फ्योल ने यहाँ पे फोकस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट और बिलीव और नेशनैलिटी। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो अगर सेम लेवल का बंदा है, अगर सेम एक्सपीरियंस है तो उसका सेम लेवल का प्रमोशन होगा, या सेम लेवल के पर्सन की अगर क्वालिफिकेशन सेम है या एक्सपीरियंस सेम है तो उसकी सैलरी भी सेम होगी। सो व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस इट इम्प्रूव्स द सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल अमंग एम्प्लॉयज, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग द बेटर रिलेशन अमंग्स द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। According to this principle, management should remove the feeling of insecurity of job from the minds of employees. If the job of a person is not secure, then what will happen? Definitely, he will be on lookout for another job, or maybe his work will not be satisfactory. So what Fuel says? Fuel says that there should be proper efforts to achieve stability and continuity of टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब है कि वो जो टाइम पीरियड पे उसे प्रॉपर टाइम दिया जाए उस पर्टिकुलर प्लेस पे काम करने के लिए, कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, अपना रिजल्ट्स शो कर पाए। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम पीरियड होना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय एक रीजनेबल टाइम दे पाए टू शो हिज रिजल्ट्स। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ना हो। यहाँ पे फ्यूल एक और बात ऐड करते हैं कि जब हम सिलेक्शन करें किसी भी एम्प्लॉय का तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसका सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर हम उसे बार बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फिर जब हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को सर्च करेंगे तो हमें दोबारा से सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा, तो अगेन उसमें कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट और टाइम दोबारा लगेगा। तो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ personnel. Now next principle, principle of initiative. According to this principle, workers should be encouraged and given an opportunity to take some initiative in making and executing the plans. Initiative means here suggestion. So employees get satisfaction when they are allowed to take initiative. Initiative on their part can be a great source of organizational strength. Fuel basically suggested that employees at all levels should be encouraged to take initiative in work related matter. तो यहाँ पे फ्यूल ने स्पेशली इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, और जो बेटर सजेशंस दे रहे हैं उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देने के लिए भी, क्योंकि इससे क्या एडवांटेज है, इससे एडवांटेज है कि कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज करने में एम्प्लॉयज के, और साथ ही साथ जो कमिटमेंट है एम्प्लॉयज की टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। सो दिस इज दी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाली है कि यहाँ पे फ्यूल ने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि जब भी एम्प्लॉय सजेशन दे तो मैनेजमेंट को सजेशंस को मानना भी है। उन्होंने ये भी कहा एम्प्लॉयज के लिए कि एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर सजेशन को अगर मैनेजमेंट नहीं मानता तो वो डिसओबे ना करे। सो वहां पे जो ओबीडियंस, जो हम पहले भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में डिस्कस कर चुके हैं, जो ओबीडियंस है वो कहीं ना कहीं फॉलो होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज।
Let's move to last principle, that is esprit de corps. According to this principle, management should promote a team spirit of unity and harmony amongst the employees. According to this principle, it is the duty of the manager to replace I with we. सो यहाँ पे फोकस किस पे किया है कि जो मैनेजर है वो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, म्यूचुअल ट्रस्ट का एंड बिलोंगिंगनेस का अमंग्स दी टीम मेंबर. इससे एडवांटेज क्या होगा? इससे एडवांटेज होगा कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो कहीं ना कहीं इजीली अचीव हो जाएगा. बिकॉज टीम हेयर मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव मोर. यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम में काम कर रही है, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक स्पेसिफिक टारगेट मिला है तो ये स्पेसिफिक टारगेट डेफिनेटली जितने भी मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. बट अगर किसी कारण से कोई भी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा या अपने इंडिविजुअल टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर एम्प्लॉयज की या वर्कर्स की कि वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करें. तो इट इज कॉल्ड, वो इंडिविजुअल टारगेट पे फोकस नहीं करें, किस पे फोकस करें? ग्रुप टारगेट पे. So what the advantage of esprit de corps? It helps in developing an atmosphere of mutual trust and also help in achieving the group goals. It also help in maintaining the better relation between the management and worker. So it is all about the fuel principle of management. Students, for better understanding, let's go to few case study. Our first case is Sumesh started his business of food items. Being the sole proprietor of business, he used to take all the important decisions. When the business of Sumesh expanded, he continued with the old practice of controlling all by himself. It led to the delay in all important decisions. Which principle violated by Sumesh? तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि सुमेश जो पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता था, अभी क्या किया? उसने अपनी फर्म को एक्सपेंड किया है. तो जो पहले की कंडीशन थी उसके अंदर ही हिमसेल्फ मैनेज ऑल द थिंग्स, तो उसके लिए इजी था डिसीजन लेना. और जब बिजनेस एक्सपेंड हो गया, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, तो सारे डिसीजन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम कौन से प्रिंसिपल से इसको रिलेट करते हैं? अगर हमें याद हो तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिस्कस किया था? डिसीजन मेकिंग की बात की थी हमने. उसमें हमने देखा था कि सेंट्रलाइज मीन्स व्हेन सिंगल पर्सन टेक्स ऑल द डिसीजंस, या डिसीजन मेकिंग पावर जब सिंगल हैंड में हो तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन. तो अगर वो फर्म सोल प्रोप्राइटर थी तो सारे डिसीजन कौन ले रहा था? सुमेश. बट क्या अभी वो कंडीशन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा था? देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वॉलेट हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे अब सारे डिसीजन लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ सेकेंड केस, interest of various stakeholders like owners, shareholders, creditors, customers, etc. cannot be sacrificed for one individual who want to exert pressure on the company. Discuss the management principle highlighted in the statement. तो हम यहाँ पे इस केस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ये केस में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, ओनर हैं या शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या कस्टमर हैं, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए उन्हें सेक्रीफाइस नहीं कर सकते. यानी कि कौन सा इंटरेस्ट सुपरसीड होगा? जनरल इंटरेस्ट. और हमने किस प्रिंसिपल में ये डिस्कस किया है? ये हमने डिस्कस किया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट वाले प्रिंसिपल में. तो यहाँ पे कौन सी प्रिंसिपल डिस्कस हो रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. तो दिस इज अबाउट द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट.